ऑलराइट, हम लोग अब हम पास पेपर के क्वेश्चंस करने लगे हैं ऑडिट रिस्क से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें जो हमने रिक्वायरमेंट करनी है पहले उसको देखते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है जनाब? इवेल्युएट the significant risk of material misstatement to be considered in planning the company's audit. You should not include risk of material misstatement relating to the valuation of the company bearer plants or biological assets which will be evaluated separate. ठीक है। सबसे पहले वो आपको कह रहे हैं कि इवेल्युएट करना है इसको सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो कि कंसीडर होगी कंपनी ऑडिट को प्लान करने के लिए। फिर वो देखो आपको क्या कह रहा है, यू शुड नॉट इंक्लूड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ कंपनी बेयरर प्लांट्स, यानी कि उसकी जो वैल्यूएशन वगैरह रिवैल्यूएशन वगैरह उसके हमने नहीं लगा। 20 मार्क्स से रिक्वायरमेंट के 20 मार्क्स का मतलब है कि हमें 6 to 8 रिस्क हमें 7 to 8 रिस्क देना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सिनेरियो के शुरू में आते हैं और देखते हैं कि हमें कुछ मिल रहा है। You are a manager in the audit department of Snow and Company, a firm of chartered certified accountants, and you are responsible for the audit of Margate Company. The company has a financial year ending 30th June 2009, and you are about to start planning the audit. ठीक है। अच्छा जी, फाइनेंशियल ईयर एंड क्या है? हमेशा डेट्स का ख्याल रखना है हमें, ठीक है। 30th June 2009 जो है वो फाइनेंशियल ईयर। Marriott Company produces fruit-based food products using agriculture produce grown on its farms. Ben Dowell, audit engagement partner, met with the company finance director last week to discuss business developments in the year and recent financial performance. You are provided with the following exhibits. An email you has received from the Dowell in respect of notes of the meeting with Ben held recently with the finance director of Margaret Company. Reference document prepared by the Snow and Company containing an overview of accounting requirements, extract from the latest management accounts or their email of the audit engagement partner from Land Large. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नोट्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले जी मीटिंग अटेंडीज के बारे में है। बिजनेस बैकग्राउंड है। मार्केट कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड 30 years ago. Jim Market, who began processing the food grown on his farm to make a small range of food products, including canned fruit and fruit juice. The business was relatively small until 10 years ago when the company began to expand by acquiring more farmland with different crops and building new production facilities. This extended the range of food products which could be processed, which now includes olive oil, packaged nuts, and frozen food. The company sells its products under the Fructus Gold brand name, and the goods are sold in major supermarkets and online on the company's website. ठीक है। मार्केट 30 years पहले स्टैब्लिश हुई थी। अच्छा जी, फैमिली फार्म था, यानी कि फैमिली बिजनेस है, ये याद रखना। बिजनेस वाज रिलेटिवली स्मॉल। 10 साल पहले तक कंपनी began to expand by acquiring more farmland with different crops, building new production facilities. This extended the range of foods, blah blah blah, olive oil वगैरह. Ajay, the company sells its products under the Fructus brand name and the goods are sold in major supermarkets. सुपरमार्केट्स भी आ रही हैं, कंपनी की वेबसाइट भी है। द कंपनी इज नॉट लिस्टेड। चलो जी, कंपनी लिस्टेड नहीं है। एंड द मार्केट फैमिली मेंबर्स आर द कंपनीज मेजर शेयर होल्डर्स। यहाँ पे आपका ऑडिट रिस्क आ रहा है जनाब एक, और वो ऑडिट रिस्क क्या है कि कंपनी के अब जो है वो फैमिली मेंबर्स मेजर शेयर होल्डर्स एंड जिम मार्केट रिटायर्ड सेवरल इयर्स अगो. His daughter Mia Margaret is the company's chief executive officer. अच्छा जी, other family members hold the positions in the senior management. जनाब फैमिली मेंबर्स ही बोर्ड में पाए जाते हैं
जो कि सीनियर पोजीशंस को देख रहे हैं, और जो बेटी है वो सीईओ है। तो ये हमारे लिए ऑडिट रिस्क क्यों है? डिटेक्शन रिस्क हो सकता है कि मैनिपुलेशन हो सकती है रिजल्ट्स को बेहतर निकालने के लिए, ताकि अपने पास ज्यादा रिटर्न्स ला सके। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 मार्क्स मिल गए इस डिस्कशन। ठीक है, जो कि हम लोग अभी करते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। अभी सिर्फ प्लान करते हैं, अभी सिर्फ मैं क्वेश्चन प्लान। Business development in the year. In the last year, sales made through the company's website grew significantly. The finance director believes this was in response to an advertising campaign costing 225,000. अच्छा जी, लास्ट ईयर जो सेल्स हुई हैं वो सिग्निफिकेंटली हुई है वेबसाइट पे। द फाइनेंस डायरेक्टर बिलीव्स दिस वाज इन रिस्पांस टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कॉस्टिंग $225,000 which promoted the Fructus Gold brand and coincided with the launch of a new online sales portal on the company website designed to make online ordering easier to encourage online sales. The company has regular special offers with discounts periodically offered on a selection of product lines, and offers such as buy one get one free for limited time on some products. हमें 3 मार्क्स का एक और सिनेरियो मिल गया जी। 3 मार्क्स का मिल गया। किस तरह मिल गया 3 मार्क्स का का सीन? कि देखो जी, एक बात आ रही है हमारे पास किसकी? ऑनलाइन सेल्स की। एक बात आ रही है हमारे पास किसकी? ऑनलाइन सेल्स की आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डिस्कशन करेंगे IFRS 15 का, कि जी हम लोग तब तक रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस जो है वो गुड्स ट्रांसफर, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स और गुड्स ट्रांसफर ना हो जाए। ठीक है, तो एक तो टाइमिंग डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंडली बहुत सारी ऑफर्स वगैरह हैं, तो रेवेन्यू जो है हो सकता है ओवर या अंडर स्टेटेड रिकॉर्ड, ओवर या अंडर स्टेटेड रिकॉर्ड किए गए हो। हमें एक और इशू मिल गया लिखने के लिए, ये मिल गया, इसको हमने कनेक्ट करना है और दैट्स इट। 3 मार्क्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल अभी तक हमें 5 मार्क्स मिल गए 15 में से। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। रिसेंटली concern over the level of plastic used in packaging has encouraged goods products to investigate the use of plastic-free packaging for their products. In July exit, the board approved a budget of 400,000 to be spent on research and development in new packaging for its products. By 28 Feb X9, 2000 has been spent, with this amount being paid to Propack, a firm of packaging specialists to design and develop a range of plastic-free bottles, bags, and containers. It is anticipated packaging will be ready for use in 2 years' time, at which point the company will introduce its for use across its product range. Propack is currently testing prototypes of items which have been developed with encouraging results. Okay, जनाब, ये जो हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, कितना है जी? 400,000 का है, जिसमें से 220,000 अभी स्पेंड। ठीक है, अच्छा जी, इसमें हमने IS-38 का क्राइटेरिया बताना है। IS-38 का क्राइटेरिया बताना है डेवलपमेंट कॉस्ट का पहले इसको, कि अगर वो मीट हो रहा है तो हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, और अदरवाइज नहीं कर सकते। और रिस्क क्या है कि हो सकता है इसने कैपिटलाइज कर दिया, जिसकी वजह से एसेट्स आपको ओवरस्टेटेड नजर आ रहे होंगे और एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड नजर आ रहे होंगे। हमारा ये रिस्क होगा। ठीक है, और मटेरियलिटी लेवल हम लोग बता देंगे।
तो हमारे यहाँ पे भी कितने 3 मार्क्स हो जाएंगे, तो 3 3 6 एंड 2 10 मार्क्स कवर्ड। Bang on, आगे बढ़े। A loan of 375,000 was taken out during the year to support the company's research and development plan. 375,000 का लोन लिया भाई। और आगे बात अगर हम लोग करें इस सिनेरियो में, तो अल्लाह का भला करे, सबसे पहले आपने मटीरियलिटी निकालनी है। सबसे पहले मटीरियलिटी निकाल लोगे 375,000 की, और यहाँ मटीरियलिटी निकालने के बाद आप देखोगे, फिर आप अप्लाई करोगे इसके ऊपर IFRS 9। ऑब्वियस IFRS 9 देखो जी, कितने ड्यूरिंग द वाज टेकन आउट द ईयर टू, ऑलराइट, ये क्लियर नहीं है कितने साल का है। सपोज ये फेयर वैल्यू शॉर्ट टर्म लोन है, तो फेयर वैल्यू थ्रू PNL में जाना चाहिए। इन्होंने रॉन्गली क्लासिफाई तो नहीं कर दिया। ये हमारे पास IFRS 9 की ट्रीटमेंट के बाद आपने ये रिस्क इसको बताना है, और आपको इसके भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा इसके अंदर बात करने को नहीं है, कनेक्ट करने को। तो 12 मार्क्स है। फैक्ट्री डैमेज पहले, one of the company's several factories used to process fruit and produce fruit juice was damaged in August 2006 when a severe storm occurred. High wind is destroyed out of the factory roof, and heavy rain led to flooding and damage to machinery and processing equipment. The factory has not operated since the storm, and the finance director has performed an impairment review on the building and plant and equipment. Details of the impairment review are given in the extract from the management accounts. Okay. हमारे पास ये बात आ गई कि हमारी एक कंपनी की जो फैक्ट्रीज में से एक फैक्ट्री जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो गई अगस्त एक्साइड में। ठीक है, हाई विंड्स ने जो है वो छत को उड़ा दी है, और जिसकी वजह से फ्लडिंग हुई है, डैमेज हुआ है। फैक्ट्री जो है तब से, जब से सैलाब आया तब से ऑपरेट नहीं कर रही है, और फाइनेंस डायरेक्टर जो है उसने इम्पेयरमेंट रिव्यू परफॉर्म करा है और बिल्डिंग पे, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। अच्छा जी, अब जरा हम लोगों को इसके लिए जाना होगा एग्जिबिट 4 में। चलें जी एग्जिबिट 4 में। ऑलराइट, एग्जिबिट 4 में जरा देखें। यहाँ पर है कैरिंग अमाउंट एट 31 अगस्त टू 882.50 आ रहा है। रिकवरेबल अमाउंट आ रहा है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू 135,000, वैल्यू इन यूज आ रहा है 670। 880 माइनस 250 माइनस 670 210 आ रहा है। ठीक है, द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट हैज बीन एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द सेल प्रोसेस व्हिच कुड बी जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग द डैमेज मशीन। भाई ये पकड़ो इसकी बात, ये इसने गलत ट्रीटमेंट परफॉर्म करी है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है, और इसके अंदर अजम्पशन नहीं लग सकती कि भाई वो डैमेज फैक्ट्री से जो माल देखेगा नहीं। द वैल्यू एस्टिमेट बेस्ड ऑन द फ्यूचर सेल्स व्हिच कुड बी जनरेटेड इफ द डैमेज टू द बिल्डिंग इज रिपेयर्ड। ये भी गलत ट्रीटमेंट है, ये भी गलत ट्रीटमेंट है मशीनरी की। ऐसा नहीं हो सकता, प्रेजेंट कंडीशन में हम लोगों को बताना होता है, तो ये भी इसकी गलत assumptions हैं यहाँ पे। The company is planning on the carrying out the restoration and buying new machinery at a total estimate 450,000. This amount has been provided for within current liabilities. ब्ला ब्ला ब्ला, हमें ये बातें इसके अंदर बतानी होंगी। सबसे पहले तो जी मटीरियलिटी निकाल लोगे इसकी, फिर IS-36 की आप ट्रीटमेंट बता दोगे, और फिर आप इम्पैक्ट बता दोगे कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो क्या हम लोग बात करेंगे। अगेन यहाँ पे हमारे 3 मार्क्स हो जाएंगे। सो 3, आगे बढ़े जरा। 2 5 8 11 13 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अच्छा जी,
कंप्लीट हो गए। उसके बाद यहाँ पर आए जरा, नोट 1 पे software development cost of 30,000 were capitalized during the which related to development of the online sales portal. The finance director suggests that the post software development cost and the advertisement cost should have been capitalized. भाई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती है, ये हमें मसला बताना होगा। ओके, ये 30,000 कैपिटलाइज हो सकता है। Fructus brand name is recognized in the as it is internally generated asset. Internally generated brand name नहीं हो सकता, सही ट्रीटमेंट है। कैरिंग अमाउंट ऑफ 6.5 इंक्लूडिंग इट रिलेटेड टू द स्टॉर्म डैमेज, ये हमें इंक्लूड करना होगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाए। 15 मार्क्स ओवरऑल हमें मिल चुका है। अब हमें आए अगर the fruit growing on trees and the harvested agriculture produce are biological assets which were recognized at the fair value of 3.1 million in the 2008 exits. Due to the specialized nature of these assets, an auditor expert will be used to provide evidence relating to their valuation. A resource document containing an overview of the accounting requirements into the company's activities is provided in Exhibit 3. आ जाते हैं जी, is used in the production or supply of, ठीक है, expected to be a produce more than one period, remote likely of the sold as a blah blah blah। फिर biological assets हमारे, ओके यहाँ पे हम लोग को बतानी होगी ट्रीटमेंट के फेयर वैल्यू मॉडल में क्या होता है। फेयर वैल्यू मॉडल IAS 41 का के मुताबिक हमें करना है, ठीक है। हमें वैल्यूएशन ही बतानी, लेकिन हमें ट्रीटमेंट वगैरह बतानी है। फिर produce growing on bare plants and harvested agriculture produce are biological assets and should be accounted for under IAS 41 measured on financial recognition। ठीक है, ये सारी चीज बायोलॉजिकल एसेट्स का आपने बतानी है, ट्रीटमेंट इसकी। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हेन इट शुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 2, ठीक है, बात आ गई, ठीक है। राइट, हम लोगों ने सिनेरियो यहाँ पे देख लिया। फिर लास्टली हम लोग लास्ट एग्जिबिट भी देख ले। आई ऑब्टेन योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्रॉम द फर्म, आई होप यू डोंट माइंड मी अप्रोच इट डायरेक्टली। आई एम ईमेलिंग वाइस सम concerns over recent business practice and my role as the manager in one of the company factories. I inspect sample of the food which came into the factory from the company farm and speak to the farmers on regular basis. Recently, several farmers told me that they have been instructed to use certain chemicals to spray the full fruit trees, which should increase the fruit yield. However, some of these chemicals are prohibited for use in country because they can be toxic to human. While talking to my friend, his production manager from another factory, it is transpired that he had also become suspicious that banned chemicals are being used in farms. He raised this issue with one of the company directors, who allegedly gave him $10,000 and asked him to discuss with not to discuss with anyone. My friend said I should ask for some sum of money, but I feel uncomfortable and thought I should tell someone outside the company about what is going on. Please do not mention my name, blah blah blah। भाई कंप्लाइंस इशू भी है, ये भी एक रिस्क है। कंप्लाइंस इशू भी है, ये भी एक रिस्क है। राइट, इस पे भी बात होगी लेटर ऑन। अच्छा जी, आ जाए। अब हम लोग सीधा सीधा हम लोगों ने पूरा सिनेरियो देख लिया, ठीक है। और अब हम लोग जो है वो अपना आंसर प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा जी, आंसर प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो जी हमें क्या लिखना है, ऑब्वियसली क्योंकि वो ईमेल लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा टू, क्या नाम था उसका, पार्टनर का, बैंडुअल ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है, फ्रॉम ऑडिट मैनेजर। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की जगह क्योंकि हम उसी ईमेल का रिप्लाई कर रहे हैं तो RE लिख दो, ठीक है। तो ऑडिट प्लानिंग
फॉर मार्केट कंपनी। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमें इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन में मैं किस तरह शुरुआत करूंगा? दिस ब्रीफिंग नोट्स are prepared in respect of audit planning for our client, क्या नाम है, मार्केट कंपनी, for the financial year ending 30th June 2009। ठीक है, अच्छा जी। This briefing notes include, अच्छा जी, आप क्या करेंगे, जरा क्वेश्चन पे आए, और क्वेश्चन को हम लोगों ने बस ब्रीफ करके बता देना है। पहले देखो क्या आ रहा है, इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर हमें ऑडिट प्रोसीजर्स बता देने हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ फैक्ट्री और डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज के लिए। फिर मैटर्स डिस्कस करने हैं जो कि यूज होंगे इन द ऑडिट ऑफ फूड। और फाइनली मैटर्स जो डिस्कस करना है रिगार्डिंग द ईमेल ऑफ, सॉरी, फिर जो डिस्कस करनी है इम्प्लीकेशन ऑफ लैंड की ईमेल की, वो हमें बताना है। ठीक है, तो उसके लिए उसको देखते हुए आपने बताना है, दिस briefing notes includes evaluation of the significant risk of material misstatement, the notes then contain audit procedures on किस पे on impairment of factory and impairment of factory and development cost, then a discussion is provided for the use of an auditor's expert in the audit of the company's biological assets, or finally, it includes the discussion on the matter, on the suspicious matter, sorry, behavior which could indicate a breach of law and regulations। ठीक है, अच्छा जी, पहली मेरी हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग आ गई, इवैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेट। ठीक है, इसके अंदर
इसके अंदर अब हम लोग क्या बात करेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप देखो एक्सट्रैक्ट्स में एक दफा जरा थोड़ा सा एक चीज देखिए कि हम लोग 5 मार्क्स हमारे पास रेशियोज के भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं जनाब। ठीक है, ऑल दो उसने हमें निकाल के दिए हुए हैं, हमें सिर्फ डिस्कशन करना है उसके ऊपर। ऑपरेटिंग मार्जिन उसने हमें दिया हुआ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। हमें इनको रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जब उसने आपको निकाल के दे दिए, पार्टनर ने खुद आपको निकाल के दिए, तो दोबारा रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, जो कंपैरेटिव्स दिए हैं टोटल एसेट्स वगैरह के, उसके ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन ये रेशियोज आपको उसको दोबारा निकाल के दिए हुए हैं, जो निकाल के दिए हुए हैं, वो आपको रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है भाई। वो पार्टनर के खुद के अपने पार्टनर पे शक नहीं करना। अगर मैनेजमेंट के अकाउंट्स होते उस तो आप करते, वरना आपको करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको करंट इशू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, करंट रेशियो, सॉरी करंट इशू बोल दिया था। गेयरिंग आपको बढ़ती हुई कम होती हुई नजर आ रही है 4% से, जबकि आपने लोन लिया। ठीक है, ऑनलाइन सेल्स एंड रेवेन्यू आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, चलो ये तो आपको पता है क्यों है। अच्छा जी, डिविडेंड पेमेंट्स 200 से बढ़ रही है, खाली 200 मिलियन से। ये आपने इश्यूज जरा कुछ हाईलाइट कर लिए भाई। टोटल करंट एसेट्स आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको कम होती हुई नजर आ रही है। अच्छा जी, और इंटेंजिबल एसेट्स आपको बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब हम लोग आते हैं, और अब हम लोग अपना जरा डिस्कस करते हैं। पहली हेडिंग, रिजल्ट्स फ्रॉम प्रिलिमिनरी एनालिटिकल सीजर्स। पहले क्या बात करूंगा, द लिमिटेड एनालिटिकल प्रोसीजर्स which have been performed indicate several potential risks of material misstatement। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो ROMM। जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म यूज करनी हो तो पहले ब्रैकेट में पूरा लिखने के बाद एक दफा आपको दिखा दो, शॉर्ट फॉर्म दिखा दो, फिर आप आगे कुछ अपनी शॉर्ट फॉर्म यूज करना। ये आप एग्जामिनर की इससे जिंदगी थोड़ी आसान। ठीक है, limited analytical procedures which have been performed indicate several risk of material misstatement। अच्छा जी, पहले आपने क्या बोला कि लिमिटेड एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हैं जो परफॉर्म हो रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। पहला क्या है, फर्स्ट करंट रेशियो has increased significantly from 1.4 in 2008 to projected कितना जी 2.9 to projected 2.9 2 point, yes, 2.6 2 is to 6 and 2000x9। अच्छा जी, आगे बात करें, is using the information provided
The current liabilities in 2008 were $1.564 million. ठीक है. अच्छा, किस तरह 1.564 मिलियन आप देख लें जी. 2.19 मिलियन out of 1:4 and are projected to be कितना हो जाएगा भाई. 3.35 मिलियन. इसको आप करो 2.6 से, तो ये आ जाएगा आपका 1.288 मिलियन. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, करंट एसेट्स आपके प्रोजेक्ट हो रहे हैं कितने से इंक्रीज और होते हुए नजर आ रहे हैं 53%. 53% से. और करंट लाइबिलिटीज आपकी रिड्यूस होती हुई नजर आ रही हैं 17.6%. ठीक है. अच्छा जी, गिवन दैट, इसको देखते हैं. मैनेजमेंट अकाउंट्स show that the cash balance is relatively static, लेकिन risk है, there is a risk that other current assets, presumably inventory and receivables, could be overstated. अच्छा जी, ओवरस्टेटेड होती हुई नजर आ रही है. अच्छा जी, लेकिन एक बात है कि क्या बात है भाई कि आपके जो एक करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, पार्टली एक्सप्लेन हो रहे हैं, हो सकते हैं किससे, बाय द इंक्लूजन ऑफ 450,000 की जो प्री पेमेंट हो रही है रिलेटिंग टू रिस्टोरिंग डैमेज फैक्ट्री की जो हो रही है. ठीक है. अच्छा जी, ये बात होगी, 2 मार्क्स हो गए. ठीक है. द प्रोजेक्टेड movement in gearing ratio is small from 32% to 28%. अच्छा जी, this fall in the gearing ratio is consistent.
inconsistent है. अच्छा, with the fact that inventory, with the fact that company has taken loan of dollar कितना 375,000 to finance the research and development. The expectation would be for the gearing ratio to increase unless there has been a repayment of finance of which we are unaware. चलो जी, तीन बात, हाँ, दो से तीन बातें हो गई हमारी. अब बात करते हैं ऑपरेटिंग वाली. The operating margin and return on capital employed both ratios have improved by has improved by small amount. This trend is worthy of scrutiny worthy of scrutiny during the audit as the offers and discounts offered to customers by the company should act negatively on margins and profitability. So the improvements in ratios and could indicate a potential overstatement of operating profit. अच्छा जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ROCE थोड़े बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इसको स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा कि जी ऑफर्स और डिस्काउंट्स इतने हुए हैं. ठीक है, तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन रेशियोज को थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या ओवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो ओवरस्टेट तो नहीं हुए. अच्छा जी, राइट. फिर एक और ट्रेंड हमें थोड़ा जिसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा, उसके ऊपर बात करते हैं. अनदर ट्रेंड which is worth further investigation relates to online sales, which are projected to increase by 90.5%. Okay, in the year, this is a significant increase. And while the finance director
has asserted that the increase in sales is due to the success of the advertising campaign. This need to be investigated further. जनाब 5 marks मिल गए. अगली अगली बात हमें किसके ऊपर करनी? मैनेजमेंट बाइस के ऊपर करनी है. 5 marks हो गए. अब आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज प्राइवेट कंपनी. ठीक है, ये एक प्राइवेट कंपनी है वेयर अ मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स are owned by the Margate family. कनेक्ट हो गया सिनेरियो. ठीक है. This brings a risk of management bias. Especially when one of the member of the family is company's chief executive officer. ठीक है. Who is in position to influence the financial state. The extract from the management accounts shows that a significant dividend payment is made each year. ठीक है. So there is a expectation from the family members that the company will make sufficient profit each year there is therefore a significant. चलो जी इसके ऊपर आगे बात करें. There is therefore a significant inherent risk at the financial statement level that profit will be overstated. The risk that the financial statement अच्छा जी that the financial statement level profit will be
overstate. अच्छा, the risk overstated. The risk that financial statements are deliberately overstated is indicated by the treatment of impairment, which is discussed below. Right. क्या बात करी भाई? बहुत सिंपल सी बातें करी हैं कि भाई फैमिली मेंबर्स हैं, डिविडेंड्स चाहिए, हर साल प्रॉफिट्स चाहिए, तो ये आराम से कर सकते हैं और प्रॉफिट ओवरस्टेट हो सकता है। और ये बात कि जी ओवरस्टेटेड है, इसका इंडिकेशन हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है जनाब? वहां से जहाँ हमें वो कह रहा है इम्पेयरमेंट की जो उसने ट्रीटमेंट करी है, तो उससे लगता है कि मैनिपुलेशन की गई है। आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन सेल्स की तरफ। अच्छा जी, ऑनलाइन sales makes up an increasing proportion of company revenue, which is according to company accounts is 7% of total revenue in 2000X9 और 4% था 2000X6। ठीक है, ये हमने मटीरियलिटी बता दी, एम बता। अब हम लोगों ने ट्रीटमेंट बतानी है और इम्पैक्ट बताना है, क्या इश्यूज हो सकते हैं ये बताना है, तो उसके ऊपर अब हम आ जाते हैं। ऑनलाइन सेल्स कैन bring a number of risk of material misstatement. For instance, cut-off timing, cut-off and timing of revenue recognition can be problematical in the case of market company. Risks attached to the discount which are offered on online sales as the discounts offered to customers appear to change frequently. ठीक है भाई, एक बात हो, क्या ऑनलाइन सेल्स
से हमें डिफरेंट मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कट ऑफ, टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू की प्रॉब्लम हो सकती है। मैग्रेट के केस में डिस्काउंट्स जो हैं ऑनलाइन सेल्स के साथ हैं तो वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। इसके ऊपर मैं क्या बात करूंगा दिस ब्रिंग्स यहाँ पे दिस ब्रिंग्स सम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी, दिस ब्रिंग्स सम कॉम्प्लेक्सिटी इनटू द accounting, and the company should ensure that internal controls are operating effectively effectively अच्छा जी, so that the accounting system is updated whenever the level and range of discounts and offers to customers are changed। ठीक है, ये भी बात कर ली। फाइनली रेवेन्यू could be over or understated revenue could be over or understated हो सकता है। कब हो सकता है जनाब? if discounts are not accounted for, if the discount are not accounted for appropriately, either discounts are not recorded at all or applied to wrong products। दोनों चीजों से। ठीक है जी, हमने 3 मार्क्स और उठा लिए। ओवरऑल 5, 6, 7 और ये 10 मार्क्स हो गए। अब हम लोगों की नेक्स्ट वो आएगी जनाब, क्या चीज? नेक्स्ट बात आएगी किसके ऊपर? रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या बात करेंगे? इन दिस ईयर 220,000 of research and development costs have been capitalized as an intangible asset। This represents 1.8%
ऑफ टोटल एसेट्स। ठीक है जी, 220,000 को आपने डिवाइड कर देना है टोटल एसेट से, तो 1.8% आ जाएगा। एंड 10.5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ PBT। ठीक है, एंड वुड बी कंसीडर्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हो गया जनाब, एक नंबर यहाँ पे। अब हमने बात करी अकॉर्डिंग टू IS 38। नाम नंबर लिखने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे रटे में, इसलिए मैं लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड के। Distinction has to be made between research costs, which must be expense, and development costs, which should be capitalized. ठीक है जी, if certain criteria is made, including, सारे क्राइटेरिया बताने की लिए जरूरत नहीं है, आप रेलेवेंट बता दें। जैसे कि यहाँ पे है that the technical and commercial feasibility of the asset has been established। चलो जी, अब हमने ये बात, ट्रीटमेंट बता दी यहाँ पे। अब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे सिनेरियो के साथ। इट अपीयर्स दैट द full amount paid to Propac has been capitalized, which indicates that no distinction, which indicate has been made between research costs and development costs. Only development costs can be capitalized। आपने ये भी बता, ठीक है कि भाई ये नजर आ रहा है कि प्रोपैक को जो पूरा अमाउंट दिया था वो कैपिटलाइज हो गया। इसका मतलब है कि डिस्टिंक्शन नहीं हुई है रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट के साथ, और सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज हो सकती है। अब यहाँ पे मजीद हम लोग बात करेंगे। एक मिनट पहले, ठीक है। सो देयर इज अ पोटेंशियल misstatement of the intangible asset if it includes
research costs, which should be expense. This means that the entity must intend must intend intend and be able to complete assets if it includes the research cost, which should be expense. This means that the entity must intend to complete the intangible asset and either use it or sell it and be able to demonstrate how the asset will generate future economic benefits. ठीक है जी, ये भी बात हो गई कि पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है रिसर्च कॉस्ट को लेके, जो कि एक्सपेंस होनी चाहिए थी। अगर एंटिटी जो है वो कंप्लीट कर लेती है एसेट को, रिसर्च कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस होनी चाहिए। और अगर वो एसेट को कंप्लीट करती है और फिर उसको यू खुद ही अपने लिए यूज कर सकती है, उसको सेल करने के काबिल हो सकती है, फिर और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकती है, तभी इसको हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने ये लिखा तो हमें 3 मार्क्स और मिल गए। और यहाँ पे अब ओवरऑल स्कोर हमारा कितना हो गया, 13 मार्क्स का हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट इशू के ऊपर, जो है इम्पेयर्ड फैक्टरी, जिससे हमारे हो रहेंगे कितने, हमारे हो जाएंगे 16 मार्क्स, 16। द कैरिंग अमाउंट of the factory is material to the financial position, representing 7% of total assets। ठीक है, कैरिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स आपका ये आ जाएगा। ठीक है, द डैमेज टू द फैक्ट्री इज द इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट, आपने ये भी बता दिया जनाब। अकॉर्डिंग टू, ये भी बता दो। वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप बता लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू IS 36। ठीक है, अच्छा जी, फिर however the finance director however the finance director has not prepared
impairment calculations according to IAS 36. ठीक है, specifically the recoverable amount has not been correctly determined. Okay. अच्छा जी, ये बताने के बाद कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, अब हम लोग बताएंगे सही ट्रीटमेंट। The recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. ठीक है जी। अच्छा जी, forever a review of calculation provided indicates that the determination of value in use is not correct according to IAS 36. The cash flow projections which are used to determine the value in use of the impaired asset should relate to the asset in its current condition. Expenditures to improve or enhance the asset's performance should not be anticipated. The finance director estimate of value in use is based on the assumption that the building is repaired and new machinery purchased. Neither of these assumptions should be included in the determination of value. ठीक है जी, यहाँ पे ये बात आ गई हमारी कि अकॉर्डिंग टू IAS 36 कैश फ्लो प्रोजेक्शन जो है, जब आप निकाल रहे हो वैल्यू इन यूज की, वो करंट कंडीशन को लेते हुए होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट या परफॉर्मेंस में बेहतरी इसके अंदर आप नहीं लेकर आ सकते। फाइनेंस डायरेक्टर जो वैल्यू इन यूज की assumptions लेकर आ रहा है कि जो बिल्डिंग रिपेयर होगी, नई मशीनरी परचेज होगी, ये और फिर इतने हमारे पास कैश फ्लोज होंगे, आएंगे, ये तरीका गलत।
अच्छा जी, आगे बात करते हैं हम लोग। इट इज लाइकली दैट व्हेन value in use is properly determined is much lower than the finance director's estimate, meaning that the impairment loss to be recognized is greater than the dollar 210 250 as per the finance director calculations. There is also a risk that fair value less cost to sell is overestimated. ठीक है, क्यों ओवर एस्टिमेटेड अब ये भी बता देते हैं। If the factory is damaged and machinery needs to be completely replaced, then a value of $135,000 included in management accounts, yeah, management calculation may be over optimistic. There is a risk that the impairment loss is understated and the carrying value of asset is overstated. चलें जी, हमने ये भी बात पूरी कर दी कि वैल्यू इन यूज प्रॉपर्टी डिटरमाइन नहीं है, हो सकता है फाइनेंस डायरेक्टर का जो है वो लोअरली एस्टिमेट कर रहा है फेयर वैल्यू, उसको इससे भी नीचे जा सकती है अगर वो सही अजम्पशंस लगाए। और फाइनेंस डायरेक्टर की जो कैलकुलेशन है रिगार्डिंग दी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जब फैक्ट्री डैमेज है और मशीनरी रिप्लेस करने की जरूरत है, तो यहाँ पे आपका इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो अंडरस्टेटेड हो सकता है और कैरिंग वैल्यू आपकी ओवरस्टेटेड हो सकती है एसेट की। हमने ये बात भी कर ली, 3 मार्क्स हमारे यहाँ आ गए, 16 मार्क्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अब 16 मार्क्स आ गए, अब हम लोग बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जो कि उसका क्लियरली इंडिकेशन तो नहीं है सिनेरियो में, लेकिन अक्कल लड़ाते तो ये भी काम हो जाता, इसको भी कर सकते थे, और वो है provision for restoring the damaged factory and acquiring new
मशीन। ठीक है जी। अब इस पे हम लोग क्या बात करेंगे, आइए देखते हैं। रिलेटेड टू पॉइंट अबव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स include a provision for repairing the factory and buying new machinery. अब ठीक है, अब provision should only be recognized if it meets the criteria of IS 37, including there is a present obligation as a result of past events and that a probable future outflow of economic benefits economic benefits, अच्छा जी, अच्छा जी, economic benefits which can be reliably estimated। ठीक है जी, तीनों कंडीशंस का बता दिया। In this case, the company is not contractually obliged to repair the damage। ठीक है, तो it doesn't seem so again, so it has no present obligation। अच्छा जी, and there is no evidence that constructive obligation exists। Neither does it appear appropriate
to recognize the prepayment for an expense which has not yet occurred. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. Therefore, the provision and related prepayment should not be recognized and unless an adjustment is made to the financial statements, both current assets and current liabilities are overstated. अच्छा, the amount recognized represents 3.6% of total assets and is material to the statement of financial position. ठीक है. Though it has no impact on profit. ये लिखेंगे तो भाई 3 मार्क्स और मिल गए. ओवरऑल 19 मार्क्स हम लोग स्कोर कर चुके हैं. अब हम लोग 20 से ऊपर ही इसके अंदर जाएंगे. अच्छा जी, अब हम लोग करते हैं बात इसके ऊपर सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं. ठीक है. और इसके ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करेंगे भाई, ड्यूरिंग द ईयर सॉफ्टवेयर development cost of $30,000 and advertising cost of dollar कितने 225,000 are capitalized as intangible asset. The advertising costs are material representing 1.8% of total assets and 10.7% of profit for the year. ठीक है जी. इसके साथ ही हमने ना मटीरियलिटी निकाल दी तो 1 मार्क मिल गया. चाहो तो यहीं पे छोड़ दो वैसे तो, लेकिन नहीं, हमने बात करनी है आगे. The advertising costs have been incurred to support the Fructus brand name and the finance director justifies
uh, the capitalization on the grounds that the advertising expenditure has led to an increase in sales अच्छा जी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो भी इंकर्ड हुई है प्रोक्टस ब्रांड नेम पे फाइनेंस डायरेक्टर कह रहा है कि जी कैपिटलाइजेशन हुई है कि एडवर्टाइजिंग की वजह से जो है वो सेल्स में इंक्रीज हुई है इंक्रीज हुए हैं आगे बात करें जी थोड़ी सी बात रह गई हाउ IS-38 specifically states that advertising costs and promotional costs must not be recognized as intangible assets and must be expense. ठीक है therefore intangible assets are overstated and operating expenses understated by a material amount. ठीक है जी मैंने इतनी बात कर दी तो काफी ठीक है अच्छा जी क्योंकि मैंने इसके ऊपर सॉफ्टवेयर की भी बात ही नहीं करी है तो मैं सॉरी मैं इसको कर देता हूँ एडिंग चेंज और मैं कर देता हूँ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कैपिटल ठीक है जी ये मैंने कर दिया और यहाँ पे भी मुझे मटीरियलिटी और स्टेटमेंट वगैरह का बताने के और इसका इम्पैक्ट बताने के मुझे मिल गए 3 मार्क्स ठीक है 20 मार्क्स की मेरी रिक्वायरमेंट थी मैं 22 मार्क्स पे चला गया हूँ मिलने 20 है ज्यादा तो नहीं मिल रहे तो ये है मेरा सोल्यूशन पार्ट 1 के लिए ठीक है जी आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह कनेक्ट करना है सिनेरियो के साथ किस तरह जो है वो आपने ड्राफ्ट करना आंसर देखो क्या करा है सिर्फ और सिर्फ जो है मैंने लाइन बाय लाइन में चीजों को गया हूँ मैंने चीजों को पकड़ा है उनको मैंने पहले बताया मटीरियलिटी निकाली है फिर मैंने जनाब स्टैंडर्ड के बारे में बात करी है उसको कनेक्ट कर रहा है उसका इम्पैक्ट बताया है बस यही मैं चलता है ओवरऑल और सिनेरियो को पकड़े रखा है उसको कनेक्ट करा है बस यही चीज करनी है तो आप आराम से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं आई होप क्लियर होगा फिर बात होगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन